Just a minute. Yeah. So this is the rotary four-way test of what we think, say, or do. Is it the truth? Is it the truth? Is it fair to all concerned? Is Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it build goodwill and better friendship? Better friendships. Will it be beneficial to all concerned? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you. Good evening, everyone. We have quite a few guests today. Yeah, this is the Pune North tune that we are playing. Stop screen sharing. No, this is part of the program, Krishna. Okay, sorry. Yeah, thank you, Vivek. Yeah, good evening, everyone. Welcome, Shalaka Goe for the program. She will be speaking to us and talking to us today. And yes, Vaijayanti Shah from which club from Mumbai? Rotary Club of Bombay Uptown. Rotary Club of Bombay Uptown. Welcome, Vaijayanti. And I would request other guests if they can please put in the chat, because there are quite a few of them, and we don't know who. In the Zoom meeting, it's not possible to find who is who. So welcome to everyone. And there are a few announcements from my side. That is, one is on the 1st of August, we are having a chess championship, which is a district level championship open to Rotarians and their families. So please do enroll yourself, your family members for the championship. We look forward to good participation from our club members also. Okay, and for the flood affected areas, Kuldeep has arranged for some food packets of ready to eat food to be distributed in the Konkan area. So in 2-3 days, they will be ready for dispatch. I will let you all know on the group. So whoever would like to join us at the time of dispatch can join us. And on 4th of August, yes, Dipti will take it ahead from here for secretarial announcements. Over to you, Dipti. Unmute yourself. Yeah, am I audible? Yes, yes, Yeah. Lord. Yes, very much. Welcome to another meeting. First from secretary announcement, first I'll announce the birthdays and anniversaries. So on 4th of August, we are having Rotarian Arjun Devi's birthday. So we will be wishing him on our next meeting day actually, and no anniversary. Next meeting, we will be having 3 new members onboarded with our club, Rajendra Gandhi, Shilpa Raje, and Ankush Ahira. So next meeting is about induction of new members, and we will be having a good interview of these new members. So we will come to know who they are and what they do. Today I would like to acknowledge Mr. and Mrs. Sulekha and Vivek Deuskar, who are referral of Avinash Nawate. Welcome to both of you for our meeting. Thank you, ma'am. Yeah, then I have a quick meeting, picnic announcement. We are going to have a picnic at Lonar from 13th of August. We will be starting 13th night and we will be returning 16th morning. We will be going by sleeper coach bus. So those who are interested, details will be shared shortly. But please register your names so that for logistic arrangement and all, we can just check out what all facilities can be made, and then final picnic schedule can be.
itinerary can be shared. Then, yes, of course, District 3131 online chess championship is being hosted by our club, and we want more and more participation. So the details are there on our group and or even in our mails. So please register. Then for admin directorial announcement, I will request our admin director, Rotarian Rajendra Kamire, to announce his part. Rajendra. Yes, I would like to use this opportunity to make an appeal to all the members to acquaint and familiarize themselves. Those who have not so far are the three things. One is the Rotary International site, rotary.org. Please go to this site and register yourself. The second one is Rotary 3131, which is our district site. There again, you'll have to register yourself as a member, and then you'll get the password, and you'll have to give the password and access both the websites, along with the third application app, what we call as, which is a Rotary 3131 app on your mobile. The advantage of doing all these three by all of us, it's a various fold of advantages. One is that we remain updated with all the Rotary activities at the global level as well as at the district level. That is number one. The second advantage is that as a club, for this, there are targets in terms of objectives in terms of digitalization and awareness and the usage of these sites and apps by the Rotary International and the Rotary District also. So we get more marks, and the total marks for digitalization is all put together out of 100. So at the end of the Rotary year, this will count us a lot. For example, registering ourselves for attendance at the district, any district program, whether it's online or in person, and once we register it on the district site, that is 3131, then automatically we get incremental marks for all this. So, and if you have any problems, if you come across, since it's a technology, a bit of a technology, not very complicated, so please get in touch with either Vivek Prakash or myself, and we will sort it out to the best of our abilities. Okay, over to Manisha and Dipti. Thank you, Rajendra. And now today we are going to enjoy Katha Sandhya as the program invitation was sent to you all. I request Rotarian Neelam Bende to introduce our speaker today, Ms. Shalaka Gole. So Neelam, time is yours. Thank you, Dipti. Thank you, Dipti, for this opportunity. I'm audible? Yes. Hello. Thank you. मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ शलाका जी गोड़े का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है शलाका जी गोड़े को इंट्रोड्यूस करते हुए। शलाका जी हिंदी साहित्य में शलाका जी ने एमए किया है। विषय था आमिर खुसरो और कबीर। परसों गुरु पूर्णिमा हुई है और आज एक बहुत कामयाब गुरु यहाँ पधारे हुए हैं शलाका जी। 5 या 10 नहीं तो 25 साल इन्होंने महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी पुणे और शिरवळ शाखा मुख्याध्यापिका का पद विभूषित किया है। ये करते हुए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने स्कूल के बच्चों को अपग्रेड करने के लिए। She was instrumental in organizing a fantastic exhibition on music. We can say she created a mini encyclopedia on music by virtue of such events. ये म्यूजिक का जो उनका पैशन रहा है वो आगे जाके बहुत काम आया। शलाका जी ने 25 साल विविध संगीत कार्यक्रमों को पेश किया। उसमें साहिर लुधियानवी जी के लुधियानवी पर 30 बार कार्यक्रम वो कर चुकी है। उनके इस कार्य को देखते हुए सन 2018 में उन्होंने साहिर लुधियानवी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है शलाका जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा सन 2001-2 में सासवड़ के लोकविधि न्यायालय में बतौर न्यायाधीश पद पर वो सम्मानित हो चुके हैं। शलाका जी, इस बात का भी हमें बहुत गर्व लग रहा है। शलाका जी ने बहुत सारे थीम प्रोजेक्ट किए हैं म्यूजिक में। मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मीराबाई और पर अनेक शो वो कर चुकी है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शलाका जी आपसे बात करते हुए आज। मैं शलाका जी से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे साथ रूबरू हो जाए। पेश है शलाका जी। शुक्रिया, आपके क्लब का तहे दिल से शुक्रिया मैं चाहती हूँ करना, क्योंकि मैं रोटरी जो है, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि रोटरी का नाता जो है वो मेरी रूह से है। मैं बहुत सारे रोटरी क्लब में आज तक जा चुकी हूँ और वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम मैंने किए, म्यूजिक के शोज किए हैं। तो रोटरी ये बहुत दिल के नजदीक है, इसलिए आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शलाका जी आप म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ, आपका तहे दिल से शुक्रिया आपके क्लब का, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया। रोटरी हमेशा मेरे दिल के करीब रही है, क्योंकि रोटरी क्लब्स में मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, अलग अलग तरह से प्रोग्राम लेके, कहीं संगीत सभा की है, कहीं मैंने कथा कथन किया है। तो रोटरी के लोगों के बीच में जाना मुझे दिल से अच्छा लगता है, और आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं फिर एक बार आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, आज की शाम जिसको मैं पेश करने जा रही हूँ, उनका नाम है मालती जोशी। हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी लेखिका हैं, और मैं उन भाग्यवानों में से हूँ कि जिन्होंने उनको पास से देखा और सुना। मैं भोपाल में पढ़ा करती थी, एमएलबी कॉलेज में। उन दिनों कुछ 6-7 महीने के लिए वो गेस्ट लेक्चरर करके कॉलेज में आई थी, तब उन्हें मैंने नजदीक से देखा। उनकी उपलब्धि इतनी बड़ी है, लेकिन उनका जो उसका जो चीज होना था वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ। पर इसके बाद 2014 साल के बाद हमारे जो तब्दीली हुई सरकार में, उसके बाद उनको पद्मश्री दी गई। 4 जून 1934 का उनका जन्म है और उम्र की 82 साल में उनको पद्मश्री दी गई। हालांकि देखा जाए तो ये पद्मश्री बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। गुलजार साहब और जया बच्चन की खास दोस्त रही मालती जोशी ने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे नाटक लिखे। इनके टेलीविजन पर भी सीरियल्स हो चुके हैं, और ये महाराष्ट्रियन है, औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ। लेकिन इन्होंने एमए जो है हिंदी में वो आगरा विश्वविद्यालय से किया, और हिंदी साहित्य में मैं ये लिखती रही, मराठी में भी लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य में इनका योगदान बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आज मैं उनकी एक जो उपन्यास है, लघु उपन्यास, उसको छोटा कर कर मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसका नाम है पाषाण युग। सारी घटनाएं मालती जोशी की हैं, लेकिन शब्दांकन मेरा है, क्योंकि उसके सिवा प्रवाह जो है वो बढ़ता नहीं है, चलता नहीं है, इसलिए पूरा शब्दांकन मेरा है। अगर कल को आपको ये मिली भी उपलब्धि और आपने पढ़ना चाहा, तो उसमें घटनाक्रम आपको मिलेंगे, लेकिन शब्दांकन मेरे अपने हैं, इसलिए प्रवाह के लिए मैंने अपना शब्दांकन ये किया है। तो इजाजत चाहती हूँ, आपके सामने पेश कर रही हूँ पाषाण युग। उस दिन मेरा घड़ी की तरफ ध्यान गया तो साधारण 4 बजे हुए थे, और मुझे याद आया कि इन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा था कि आज कुछ खास नाश्ता बनाना। और मेरा घड़ी की तरफ ध्यान जाते ही मैं वहां से उठी और रसोई की तरफ गई। मेरी पहले से आदत थी, जब भी कोई काम करती थी तो मुझे गजलें सुनना बहुत अच्छा लगता था। खासकर मेहदी हसन साहब ने गाई हुई गजल जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने टेप लगाया हुआ था, मेरे हाथ काम में मसरूफ थे, और जो पहली गजल वहां पे लगी वो थी, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। आज उठे आह उस गली से हम, आज उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। ये मेरी बहुत पसंदीदा गजल मैं उस दिन सुन रही थी, और मेरे हाथ जो थे मसरूफ थे काम में। इस शेर को सुनते ही एक अनजाने शख्स की याद दिल में आ गई। दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन मैंने अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं दिया और मैं काम में मसरूफ थी। तभी अचानक मेरे कंधे पर इनका हाथ पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो ये आ चुके थे। घड़ी की तरफ नजर गई तो 4:15 ही बजे थे। मैंने इनसे पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? तो उन्होंने कहा, काम छोड़ो और बाहर चलो मेरे साथ। मैंने पूछा भी, मैं हाथ धोती हूँ आती हूँ। बोले नहीं, पहले तुम काम छोड़ो और ऐसे ही चलो, हॉल में चलो। ये मुझे लेकर हॉल में गए। सोफे पर मेरी सासू माँ बैठी हुई थी, उनके पास ले जाकर मुझे बिठाया। बहुत देर तक माँ बेटे मेरे को देख रहे थे, शाश्वत कर रहे थे, और फिर धीरे से इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा, नीरजा, हमें इंदौर जाना पड़ेगा।
तो मैंने पूछा क्यों? नहीं अब भी जाना है। मैंने कहा क्यों? उसके बाद 1 मिनट के लिए ये रुके और उन्होंने मुझे पास लेकर मेरी पीठ थपथपाई और कहा तुम्हारे पिताजी जो हैं वो गुजर गए हैं, चल बसे हैं, तो हमें अभी इंदौर निकलना पड़ेगा। मैं शून्यवत हो गई थी। पूरी तरह से मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं इसके ऊपर किस तरह से अपने आप को रिएक्ट करूं। मैं बार-बार इनको देख रही थी, माँ जी को देख रही थी। सासू माँ ने मुझसे कहा कि नीरजा मुझे ये मालूम था, मेरे को जैसे बना मैंने तुम्हारी बैग पैक कर दी है, तुम जल्दी से निकलो, वहाँ इंदौर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मुझे समझ में आई, परिस्थिति का गांभीर्य समझ में आया, मुझे बहुत जोर से रुलाई आई। इन्होंने मुझे समझाया, अम्मा जी ने समझाया और उसके बाद इन्होंने मुझे सहारा दिया, कमरे तक लेकर गए। मैंने मेरी बैग चेक भी नहीं की, जो थी जैसा अम्मा जी ने बैग बनाई थी वैसी बैग लेकर मैं गाड़ी में बैठी। पूरे सफर में हम लोग भोपाल में रहते थे, 3.5 घंटे का सफर था। पूरे सफर में मेरी आँख जो थी वो थम ही नहीं रही थी। ये बार-बार मेरी पीठ पर सहला रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम शांति से लो, वहाँ तुम्हें जाना है, तुम्हें अपनी माँ को सँभालना है, तुम्हें जो रोना है, जैसा रोना है अभी रो लो। और ये मेरे को बहुत सांत्वन दे रहे थे और किस तरह ये सफर हज़ारों यादें, असंख्य यादें जो थी वो मेरे दिमाग में उस वक़्त कौंध रही थी। कितने पापा के रूप थे। मैं जब छोटी थी तब पापा मुझे गोद में लेकर घूमते थे, तब की यादें थी। पापा ने मुझे पढ़ाया तब की यादें थी। पापा ने मुझे बड़े होने पर जो चीज़ें समझाई उसकी यादें थी। ऐसी हज़ारों यादें मेरे दिल में समाई हुई थी और मेरा वो सफ़र कैसे-वैसे 3 साढ़े 3 घंटे में ख़त्म हुआ। जब घर के बाहर हम लोग पहुँचे तो बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। क्यों ना हो, मेरे पापा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विज्ञान के प्रोफ़ेसर थे, डॉक्टरेट की हुई थी। बहुत सारी किताबें उनकी बायोलॉजी पर लिखी हुई जो थी वो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में चलती थी। बाहर देश-विदेश से उन्हें सम्मान मिल चुका था। उन्हें बहुत उनके हाथ के नीचे तकरीबन 30 एक विद्यार्थी पीएचडी कर रहे थे। इतनी उनकी प्रसिद्धि थी, सरकार दरबार में भी उनका वज़न काफ़ी था और उन्हें बहुत सम्मान के साथ देखा जाता था। ऐसे बहुत बड़े मशहूर शख्स की मैं बेटी थी। भीड़ को चिरते हुए आलोक मुझे अंदर लेकर गए। मैं हॉल में गई तो मैंने देखा पापा का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। मेरे ऊपर से पूरी तरह से काबू खत्म हो गया। मैं उनके पैरों पे गिर पड़ी, फपक के रोई, बिलक के रोई। उनका हाथ मेरे हाथ में आया तो मेरे दिल में पहली जो विचार आया वो ये कि इन्हीं हाथों ने 6 महीने पहले मेरा कन्यादान किया था। क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के? किस तरह से चले गए? और इतना रोई, आखिर में बड़े भैया ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर माँ के पास बिठाया। माँ तो जैसे किसी दुनिया में ही नहीं थी। कहाँ उसकी नज़र थी, कहाँ वो देख रही थी उसको, उसका खुद को ख़्याल नहीं था। मैं माँ के पास गई और मुझे आलोक की याद आई। आलोक ने कहा था सँभालो खुद को, तुम्हें माँ को सँभालना है। मैं माँ के पास गई, माँ से लिपटी, माँ से भी बिलक के रोई, माँ भी रोई। तब बड़े भैया आए और उन्होंने हम दोनों को अलग किया और मेरी माँ से कहा कि माँ मैं पापा को ले जा रहा हूँ, आखिरी बार देख लो। और फिर उनका पार्थिव शरीर जो है 4 कंधों पे सवार हुआ। 2 मेरे बुआ का और चचेरा भाई था, एक मेरा छोटा भाई था और चौथा कंधा आलोक ने, मेरे हस्बैंड ने दिया था। और बड़े भैया मटका लेके आगे चल रहे थे। हम दोनों, मैं, माँ और रिश्तेदार, औरतें सब हम लोग पोर्च तक गए। आखिरी बार मैंने मेरे पापा को देखा और फिर मेरे पापा को पंचतत्व में विलीन करने के लिए लोग ले गए। रात को जब सब लौटे तो तकरीबन 10 बज चुके थे। उस दिन बुआ जी आई थी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला कर रोई थी। माँ से बार-बार कह रही थी ऐसे कैसे हो गया वगैरह। माँ खामोश थी, माँ ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। और मेरी बुआ की बस एक ही कोशिश थी कि किसी तरह वो हाथ से उनका सिंदूर पोंछ दे, उनके माथे पे लगी हुई बिंदी पोंछ दे, उनके कंगन उतार दे। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मेरे भाई ने कहा आकर कि खबरदार जो मेरी माँ का बदन को किसी ने हाथ लगाया तो जब वो नहाएंगी अपने आप सब चला जाएगा। आप इस तरह की कोई फुहड़ कोशिश नहीं करेंगी। इसलिए बुआ जी मन मसोस की रह गई। दूसरे दिन से सिलसिला शुरू हुआ लोगों के मिलने का। बुआ जी जैसे आई थी वैसे निकल गई, ये प्रॉमिस करके कि वो 10वें तक वापस आएंगी। लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग इतने ज़्यादा लोग मिलने आ रहे थे।
बार बार क्या हुआ था, कैसे हार्ट अटैक आया, कब आया, बाईपास की थी या नहीं की थी, क्या हुआ था, किस दिन गए, कितने बजे गए, और ये सारी बातें बोल बोल कर दिमाग ऐसे कौन सा गया था, चक्कर आ रहे थे, वही वही बातें, वही वही बातें। जब हॉल में लोग मिलने आते तो मैं 2 मिनट के लिए बैठती और अंदर निकल जाती, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मेरी भाभियां सब लोगों को सबका अभिवादन करती, सबको परिस्थिति बताती। माँ तो पहले से ही बहुत कम बोलने वाली थी, जरूरत होती तो बोलती। तीसरे दिन उनका जब अस्थि विसर्जन करके और सब ये करके लौटे, तो आलोक ने मुझसे कहा कि अब मैं कल चलता हूँ, तुम महीना भर यहाँ रहो, महीना भर के बाद अम्मा और मैं आएंगे, अम्मा को तुम्हारी माँ से भी मिलना है और फिर जाते वक्त तुम्हें वापस ले जाएंगे। मैंने मूक सम्मति दी। हम दोनों, मैं जितने 2-3 दिन माँ के पास ही सो रही थी, ऊपर कमरे में इनकी अलग व्यवस्था थी, फिर मैं ऊपर गई तो मेरी भाभियां हंस रही थी और मेरे से बोली, मुझे अंदर ठेलते हुए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कहा, कुंवर जी 15 दिन मिलने वाले नहीं हो बीबी से, मिल लो गले। ये बात होते ही इन्होंने मेरी तरफ इतने गुस्से से देखा और बोले, क्या तुम्हारी भाभियों को तमीज नहीं है, ये वक्त है इस तरह के मजाक करने का। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उनकी बैग पैक की। उसके बाद वो बोले कि अब मैं निकलता हूँ, और नीचे जाने के लिए मुड़े तो मैंने उनसे कहा कि मैं नीचे नहीं आऊंगी, मैं यहीं से आपको अलविदा कहती हूँ। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। जब ये नीचे गए तो मेरे भाइयों ने, गाड़ी थी, गाड़ी में ये बैठे, इन्होंने गाड़ी से झाँक कर ऊपर देखा, मैं गैलरी में खड़ी थी, इन्होंने मुझे हाथ किया, मैंने बाय किया और ये चले गए। और उसके बाद हर दिन इसी तरह से बीत रहा था, लोग आते थे, लोग बोलते थे, बात करते थे, बातें होती रहती थी। एक दिन ऐसे ही हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे और शाम के 7 बजे गाड़ी आके रुकी और गाड़ी से उतरा रंजीत वर्मा। इस उम्र में भी उसको देखकर मेरे दिल में एक टीस उठी थी। वही रुबाबदार चाल, वही व्यक्तिमत्व, वही पर्सनैलिटी, वही दिखना, बेहद हैंडसम, बेहद खूबसूरत, बहुत आत्मविश्वास से चलता था रंजीत। और वो अंदर आया। अंदर आने के बाद वो पहले माँ के पास बैठा, माँ से बातचीत की। माँ उससे काफी खुल के, माँ के सहपाठी थे वो, माँ उनसे बात कर रहे थे। मेरी दोनों भाभियां वहां बैठी एकटक उन्हें देखे जा रही थी। फिर उनका रुख मेरी तरफ हुआ, मेरे से पूछा उन्होंने, भावना कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक चल रहा है, तुम्हारे मियाँ नहीं आए? मैंने कहा आए थे, वो 2 दिन पहले चले गए, फिर आने वाले हैं। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं बोला। कितनी यादें इस शख्स से वाबस्ता थी जो मेरे जहन में घूम रही थी। फिर उस दिन माँ ने उनके पास बहुत दिल हल्का किया। माँ हमेशा ही उनसे बहुत खुलकर बात करती थी। माँ की गृहस्थी के बारे में उनको सब कुछ मालूम था। उन्होंने माँ से हंसकर कहा कि नीरू, तुम्हारी जिंदगी कैसे थी मालूम है? ये ऊपर वाला होता है ना, बहुत कारसाज होता है। ऐसे लोगों की जोड़ियां जमाता है जो बिल्कुल विरुद्ध, एक दूसरे दूसरे के विरुद्ध दिशा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थ तो, आश्रम तो गृहस्थ होता है, संसार ये संसार होता है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा एक नसीर तुवानी की गजल तुमको देखकर याद आती है। वो हम सफर था, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। हम नवाई यानी उसके साथ हम ख्याली या एक जैसे विचार न थे। उससे हम नवाई न थी। धूप छांव का आलम था, मगर कभी जुदाई न थी। जिंदगी में धूप छांव तो होती रहती है, लेकिन जुदाई भी नहीं। अदावतें थी, तगाफुल था, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर। अदावतें यानी दुश्मनी, तगाफुल यानी निग्लेक्ट करना, और रंजिशें यानी नाराजगी। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, मगर बेवफाई न थी। ऐसी तुम्हारी दुनिया थी नीरू। माँ बहुत रोई, बहुत रोई, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल कह रहा था ये आदमी जरा भी बदला नहीं। थोड़े से बालों में सफेदी आ गई है, इसके सिवा इसमें कोई बदल नहीं हुआ। वही अंदाज, वही गजल पेश करना, वही शेरो शायरी की दुनिया में मशगूल रहना। कोई कह सकता है कि ये आदमी आईएएस ऑफिसर है? और मैं इन्हीं सोच में थी कि उतने में वो उठे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे से कहा, मैं चलता हूँ, तुम्हारे सब बच्चे नीरू बहुत अच्छे हैं, तुम्हें संभालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बावजूद भी कभी किसी चीज की कमी महसूस हो तो संकोच मत करना, मुझे बुला लेना। बात खत्म होने के बाद वो निकल गए। खाना हुआ, फिर हम लोग ऊपर अपने कमरे में जाने लगे। तो मेरी छोटी भाभी ने पूछा,
कौन था ये शख्स इतना हैंडसम? उस पर मेरी बड़ी भाभी ने जवाब दिया, यू डोंट नो, द एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ आवर सासू माँ। ये बात उन्होंने पूरी की ही थी कि मेरे बड़े भैया उनके ऊपर बुरी तरह बरसे और चीखे और बोले, तुम्हें तमीज नहीं है, बदतमीज की तरह बात करती हो, तुम्हें मालूम है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उठाई जवान और चला दी, इस तरह कोई कहता है? और जोर से वो भाभी को ठेल कर ऊपर कमरे में चले गए। मेरे छोटे भाई ने भी बहुत नाराजगी से भाभी की तरफ देखा, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और वो भी अपने कमरे में चले गए। माहौल में बहुत कड़वाहट सी आ गई थी। पहले ही हम लोग बहुत शोक में डूबे हुए थे, उस पर कड़वाहट आ गई। आहिस्ता कमरे से मैं ऊपर वाले कमरे में सोने चली गई, क्योंकि उसी शाम को बुआ जी भी आ गई थी और बुआ जी माँ के पास थी। मैंने जैसे ही कमरे में अपने आप को बंद किया, पीठ टेक कर बिस्तर पे बैठी थी, मुझे वो सारे वाकयात, वो पुराना जमाना, वो दुनिया, वो मेरी अपनी जिंदगी उस दिन याद आ रही थी। मुझे याद था जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी, डाइनिंग टेबल पर हम चारों भाई बहन, बड़ी दीदी, मेरे दोनों भाई और मैं, हम चारों बैठे हुए थे। सुबह का वक्त था, नाश्ते का वक्त था और टाइम पे नाश्ता कम और शब्दों की खींचातानी बहुत हुआ करती थी। एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को तंग करना, ऐसे ही माहौल रहा करता था। लेकिन उस दिन सब चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि एक गुलाबी रंग का कागज जो था वो टेबल के बीचों बीच पड़ा हुआ था। सब खामोश थे। अचानक उस चुप्पी को दीदी ने तोड़ा और दीदी ने कहा कि बस, मैं इस औरत को फेस नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। और वो उठकर निकल गई। उसके बाद मेरे बड़े भाई बोले कि मैं परसों ज्वाइन होने वाला था, मैं आज ही ज्वाइन हो रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। फिर मेरा छोटा भाई मेरे से बोला, खुश हो ना, बहुत फेवरेट थी तुम्हारी नीरू दीदी, अब बैठो सौतेली माँ लेकर सर पर। तो मैं उस उम्र में इतनी अनजान थी कि मुझे समझ भी रहा था और कुछ समझ भी नहीं रहा था। मैंने छोटे भाई की तरफ देखा, उसने कहा पापा से कहना मेरा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से दूर पड़ता है, तो मैं उधर ही रहूंगा और मैं नहीं आऊंगा। मेरे देखते देखते मेरे तीनों भाई बहन घर से बाहर निकल गए। उस तार में लिखा हुआ था कि मैंने नीरू से शादी कर ली है और सोमवार को सुबह 9:30 बजे मैं पहुंच रहा हूँ। बहुत विसंगत शादी थी। मेरे पापा की उम्र बड़ी थी, नीरू दीदी उनकी विद्यार्थिनी थी और पापा ने कब ये शादी कर ली? मेरी माँ तो मेरे छोटेपन में ही, जब मैं 8-9 साल की थी, तभी गुजर चुकी थी। लेकिन मुझे समझ ही नहीं रहा था कि मैं कैसे इसके ऊपर रिएक्ट हूँ, क्या करूँ? 9:30 बजने की तरफ मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9:30 बज चुके थे, 5 मिनट हो चुके थे। तभी पार्टी को मैं आके गाड़ी रखी और उस गाड़ी में से मैंने दीदी को उतरते हुए देखा। लाल रंग का चूड़ा, मांग में सिंदूर, बहुत सारी बिंदी, अच्छी से साड़ी पहन के आहिस्ता कदमों से माँ अंदर आई। अंदर आने के बाद हमेशा जैसे मैं नीरू दीदी करके उससे लिपट जाती थी, आज नहीं लिपटी। सिर्फ उसे मैंने कहा कि नीरू दीदी आप बैठ जाइए, आपको पानी दूं, आप नाश्ता करेंगे? तभी महाराज बाहर आए, जो खाना बनाते थे हमारे यहाँ, आकर मेरे से बोले, ये का भवा कहाँ सब भाई लोग किधर गए नाश्ता छोड़कर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दीदी से पूछा, आप नाश्ता करेंगी? उस पर दीदी ने मुझसे कहा, इधर आके बैठो मेरे पास। और फिर मुझसे बोले कि मैं और किसी से तो कोई भी गुजारिश भी नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे एक विनंती है, सुनोगी मेरी बात? तो मैंने पूछा, क्या? कम से कम तुम तो मुझे माँ कहो। और उस पल से नीरू दीदी मेरी माँ बन गई। पहले से ही हम दोनों में काफी दोस्ती थी। जब वो पापा के पास आया करती थी, पापा के अंडर वो पीएचडी कर रही थी, पापा किताब लिख रहे थे, उसमें वो सब मदद कर रही थी। तो जब भी वो घर आती तो मैं उनसे कहती थी, मेरी चोटी आप बनाइए। मैं उनसे कुछ कुछ फरमाइश करती, वो कुछ खाने को बना कर ले आती थी। अच्छी दोस्ती थी हम दोनों में। और उस दिन से पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि हर कोई इनको जो है नहीं मान रहा है, लेकिन मुझे मानना चाहिए। मैंने उन्हें अपना लिया, मैंने उन्हें दिल से मान लिया था। इसी तरह फिर उस वक्त मुझे पहली बार पापा की एक बात खटकी थी। वो जानते थे कि ये शादी कोई भी कबूल नहीं करेगा, इस पे हंगामा तो जरूर उठेगा। एक तो उम्र का अंतर, उस पर से इस उम्र में उन्होंने शादी की थी, कम से कम अपनी आधी उम्र की लड़की से। और वो जानते थे कि मेरे भाई बहन बुरी तरह रिएक्ट होंगे, लेकिन वो उनका सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो यूनिवर्सिटी रुक गए और माँ को अकेले भेज दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था उस वक्त कि कम से कम उस दिन तो उन्होंने माँ के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, उन्होंने उनको अकेले भेज दिया। मैंने माँ से कहा, पापा कैसे नहीं आए? वो शाम को आएंगे। उस वक्त माँ जब ये कह रही थी तो उनकी नजरों का विषाद मेरे से छुपा नहीं। मैंने भी बात दिल में रख ली, मैंने कुछ कहा नहीं। शाम को पापा है, पापा ने पूछा, कहाँ गए सब?
तो मैंने कहा कि आपको सब लोग फोन करने वाले हैं, कहाँ गए हैं मुझे मालूम नहीं। पहला फोन दीदी का आया, उन्होंने कहा मैं वो मेडिकल के लास्ट ईयर में थी, उन्होंने कहा मैंने एडमिशन ले लिया हॉस्टल में, इस माहौल में मेरी पढ़ाई नहीं होगी, तो अतः मैं घर नहीं आऊंगी। बड़े भाई ने कहा कि मुझे ऑफिस से फोन आया था, 2 दिन पहले ही ज्वाइन हो जाऊं, सो मैं मुंबई निकल चुका हूँ। छोटे भाई का फोन आया, उसने भी यही कहा कि ट्रेनिंग सेंटर बहुत दूर पड़ता है पापा घर से, गाड़ियां बदल बदल कर जाना पड़ता है, तो मैं बेटर वे ट्रेनिंग सेंटर के पास ही रहूंगा। पापा को जो समझना था वो समझ लिया, पापा को ये ध्यान में आया, और पापा की इसके लिए पूरी तैयारी थी, नीरू दीदी की भी। दिन बीतने लगे, फिर पापा ने कहा कि नीरू तुम कॉलेज में लेक्चरर हो, पीएचडी कर रही हो, मेरी किताब देखती हो, तुम इतनी मसरूफ रहती हो, मैं मसरूफ रहता हूँ, ये इतनी सी लड़की घर में अकेली रहेगी, इसके और भाई बहन नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको भी हॉस्टल भेज दिया जाए। सो मेरी रवानगी भी हॉस्टल में हुई। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। हर शनिवार रविवार चली आती थी, मम्मी पापा मुझे बहुत घुमाते थे, मैं अलग अलग जगह उनके साथ जाया करती थी, दिन अच्छे चल रहे थे। जैसे ही मैं 10th क्लास में पहुंची, मेरी फाइनल उस जो गैदरिंग था उसमें मैंने माँ से जिद की कि आप गैदरिंग को जरूर आइएगा। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं इनसे कहती हूँ, हम दोनों आएंगे। और उस गैदरिंग में मैंने हिस्सा लिया था। मैं मेरी फ्रेंड्स से, मेरी सहेलियों से अक्सर मेरे माँ के बारे में बात करती थी। मेरे ऊपर मेरी माँ का प्रभाव बहुत ज्यादा था। मैं जो थी उनसे बहुत ये थी जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रभावित थी और मुरीद थी एक तरह से अपनी माँ की। तो माँ और पापा दोनों गैदरिंग के लिए आए, गैदरिंग हुआ, फिर मैंने मेरी सहेलियों से जब पहचान करवा के दी, सभी मेरी तरह टीनेजर थी। मेरी सहेलियों ने कहा कि भावना, तुमने जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी माँ खूबसूरत है। और मेरी सहेलियां उनसे कहती रही, आंटी आप बहुत खूबसूरत है। और उस दिन क्यों ना हो, माँ लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। ढीला सा जूड़ा, उस पर लगाए हुए गुलाब के फूल, वो अबूली रंग की साड़ी, बहुत अच्छी लग रही थी माँ। फिर गैदरिंग खत्म होने के बाद ये तय हुआ था कि मैं इन लोगों के साथ घर आऊंगी। हम लोग बाहर निकले, पापा कार ड्राइव कर रहे थे, मामा आगे बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर बैठी थी। स्कूल कैंपस से बाहर निकलते हुए मेरे पापा ने कहा, नीलू तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जरा कुछ बालिश होती जा रही हो? इतना सज धज के इसके स्कूल में आने की क्या जरूरत थी? दूसरी बार पापा खटके थे। क्यों ऐसे बोले माँ को? क्या हुआ कि माँ जवान लग रही थी या माँ बहुत खूबसूरत थी, इसका कॉम्प्लेक्स उन्हें आ गया? अपनी उम्र का फर्क दिख गया? माँ तो हमेशा से ही अच्छी रहती थी। मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन ये बात उन दिनों की है कि उन दिनों उस जमाने की है कि जब बड़ों से जवाब तलब नहीं किया जाता था। मैं खामोश रही। हम लोग घर आए। घर आने के बाद फिर से रूटीन शुरू हो गया। 10वीं की एग्जाम हुई, मैं पास हुई, मेरी कॉलेज की एडमिशन की बात हुई, कॉलेज में जाने लगी। इधर पापा की किताब भी पूरी हुई। पापा के किताब का प्रकाशन समारंभ बहुत बड़ा होने वाला था। एजुकेशन मिनिस्टर भी आने वाले थे। उसकी तैयारी में माँ दिन रात डूबी रहती थी। मैं भी उन्हें जब मिलता, मुझे वक्त जैसे बनता, मैं उनको मदद करती। लेकिन पूरी तरह से उसकी जो तजवीज थी, उसका जो बंदोबस्त था उस फंक्शन का, वो माँ ने किया था। प्रकाशन का दिन आया, माँ ने साड़ी पहनी हुई थी। उस दिन के बाद, जिस दिन मेरी माँ की तारीफ हुई थी मेरे स्कूल में, उस दिन के बाद मैंने एक बात को नोटिस किया था कि माँ ने बहुत भारी साड़ियां पहनना छोड़ दिया था। वो सादी साड़ी पहनती, छोटी सी पोनी बना देती, लेकिन उन्होंने सजना धजना छोड़ दिया था। और मुझे ये बात बहुत अकड़ती थी, लेकिन मैं बोली नहीं कभी। जिस दिन प्रकाशन समारंभ था उस दिन भी वो सादी सी कलकत्ता साड़ी पहन के तैयार हुई थी। तो मैंने माँ से जिद की कि ये ठीक नहीं है, आज इतना बड़ा फंक्शन है जिसकी पूरी तैयारी आपने की है, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और आप इस तरह की साड़ी क्यों पहनते हैं? तो माँ ने इस पर जवाब दिया, अरे मेरा क्या है, पापा की तरफ ध्यान होगा, मुझे काम करने हैं, तुम जिद मत करो, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक। प्रकाशन समारंभ हुआ, किताब हाथ में आई तो पहले पेज पर मेरी नजर गई, जहां पर मेरे पापा ने लिखा था कि मेरी दिवंगत पत्नी पुष्पा को मैं ये पुस्तक समर्पित करता हूँ। फिर एक बार पापा खटके। क्या थी मेरी माँ? 8वीं 9वीं भी पास नहीं थी। विज्ञान का वो भी उन्हें समझता नहीं था। सिर्फ गृहस्थी चलाना, दोनों टाइम खाना बनाना, अच्छे से पति को संभालना, 4 बच्चों को पैदा किया, इसके सिवा उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और उन्हें क्या साइंस के बारे में मालूम था?
और मुझे पता नहीं उस वक्त ऐसे लगा कि पिताजी प्रदर्शन कर रहे हैं, पापा अपने मोहब्बत का प्रदर्शन कर रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं थी मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें इतनी बाहर की समझ नहीं थी, इस बात के उलाने वो हमेशा दिया करते थे। आज ये प्यार कहाँ से उमड़ा है? फिर मेरे को पता नहीं ऐसे लगा कि पापा एक मौका नहीं छोड़ते हैं कि जहाँ उन्हें अपने आप को दिखाना हो रहता है। फिर उसके बाद सिलसिला हुआ लोगों के बोलने का, आखिर में पापा आभार प्रदर्शन करने खड़े हुए तो उन्होंने फिर एक बार मेरी माँ को याद किया, सबका तहे दिल से शुक्रिया किया और इस किताब को लिखने में मेरे जो विद्यार्थियों ने मदद की, उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे कहकर वो बैठ गए। मुझे बुरा लगा, मैंने माँ से कहा, माँ कम से कम आप तो लेना था उन्होंने आपका नाम। आपने कितनी मेहनत की है इस किताब के बारे में, आपका नाम भी नहीं लिया। तो माँ ने कहा, पागल हो तुम? उन्होंने कहा ना मेरे सारे विद्यार्थियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं भी तो विद्यार्थिनी थी उनकी, हूँ अभी भी, तो हो गया ना, उन्होंने ले लिया मेरा नाम। मुझे इस औरत की दिमागी सोच पर बहुत हैरानी होती थी कि इतना पेशेंस और इतनी समझदारी ये कहाँ से लेकर आई थी, और इसी बात से मैं उनकी ओर खिंचती चली गई। ऐसे ही एक बार शाम को हम बैठे तो रंजीत वर्मा पहली बार हमारे घर आए। मैं और माँ बैठे हुए थे हॉल में। मेरी माँ उसको देखकर हैरान हो गई, उनसे कहा, अरे रंजीत तुम यहाँ कैसे? तो रंजीत ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तंग करने नीरू चला आया, तुमने बताया भी नहीं, शादी हो गई, ये हो गई, कहाँ हो आजकल, देखो मैंने पता निकाला। तो माँ ने कहा कि हाँ तुमने कैसे पता निकाला, क्या करते हो? तो उसने बताया कि आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरी पोस्टिंग इंदौर में हुई है, एज ए कलेक्टर मैं यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं था तुम्हारा पता लगाना, क्योंकि मुझे मालूम था तुम इंदौर में हो और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिर उसके बाद उनकी गपशप शुरू हुई, कॉलेज के ज़माने की बातें हुई और बातों ही बातों में उन्होंने जो शायरी का सिलसिला शुरू किया, कुछ गज़लें गा के दिखाई, कुछ अच्छी-अच्छी बातें सुनाई, ये देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। मैं तो बहुत उस वक़्त टीनेज में थी, मेरी उम्र ही ऐसी थी कि इतना जो व्यक्तिमत्व था, इतना हैंडसम आदमी था, इतने सलीकेदार आदमी था, इतनी अच्छी भाषा थी जिसकी, और जिसको गज़ल तो मेरा खुद का भी बहुत अंदरूनी भाग में बसा हुआ हिस्से में बात थी और बहुत ही वीक पॉइंट था, और उसके ऊपर वो बोलते थे, कभी मीर तकी मीर के बारे में बोलते, कभी गालिब के बारे में बोलते। उनका आने का सिलसिला शुरू हुआ। वो आने से पहले फ़ोन करते थे। वो जिस दिन आते थे उसके पहले मैं घंटों सजती, संवरती, शीशे में खुद को देखती और एक तरह से मैं उनसे मोहब्बत करने लग गई। कभी वो पापा रहते हुए आते थे, कभी वो पापा नहीं रहते थे तब भी आते थे। हमारी बातें होती और फिर अचानक बात जो थी वो गज़ल पर मुड़ जाती, शेरो-शायरी पर मुड़ जाती। कभी-कभी वो गज़लें गा के सुनाया करते थे। मेरी माँ ने उनको तारुफ़ किया था, जब करवाया था मेरा तो बोला था कि ये भी शेरो-शायरी करती है। अगर मैं कोई शेर बताती किसी शायर का, अच्छे शायर का तो वो शेर पूरा करते, और इस तरह हम दोनों में बातचीत गज़लों को लेकर, उर्दू शायरी को लेकर बहुत होती है और माँ हमारी हमेशा श्रोता की भूमिका में रहा करती थी। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो आने वाले थे, मुझे पता था, घंटों में तैयार हुई शीशे के सामने, सज-संवर के बार-बार बाहर जाके देख रही थी, अब आएँगे, अब आएँगे, और वो आए तो उनके सामने मैं शर्मा के खड़ी हुई और मैंने उनसे सिर्फ़ इतने, वो बोले, "अरे वाह! आज क्या अलग है?" तो मैंने कहा, "कुछ नहीं, बस यूँ ही तैयार हुई हूँ। आपने याद किया था मुझे?" मेरे इस सवाल पर वो हँसे और बोले, "हाँ, तुम्हारी याद तो अक्सर आती है।" बस उस बात को ही लेकर मैं बहुत शर्माती हुई उनकी तरफ देख रही थी। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि माँ पीछे कब खड़ी हुई। माँ ने एक अजीब नज़र से मेरी तरफ देखा और फिर हम लोग बैठे, फिर थोड़ी देर में माँ ने कहा, "जाओ, इनके लिए चाय लेकर आओ।" और जैसे ही मैं अंदर मुड़ी, वैसे माँ ने कहा, "रंजीत, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है।" तो बोला, "हाँ, बोलो नीरू, क्या बात है?" तो रंजीत, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है ये मैं तुम्हें क्या बताऊँ? बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये जो टीनेजर लड़कियाँ रहती हैं ना, ख़ासकर से जो शायरी वग़ैरह पसंद करती हैं, लिखती हैं, ये दीवानी हुआ करती हैं। मैं देख रही हूँ मेरी बेटी का जो दिमाग है वो तुम्हारी तरफ रुझान है, घंटों तैयार होती है शीशे के सामने, तुम्हारी गाई हुई ग़ज़लें गाती रहती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि रंजीत, तुम्हारी शादी भी तय हो चुकी है, अब इसके बाद जब भी तुम आओ अपनी बीबी को साथ लेकर आओ। मैं उसकी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कल को कुछ ऊँच-नीच हो जाए और मेरे ऊपर कोई उँगली उठाए कि सौतेली माँ है, इसका ध्यान ही नहीं था। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। इसके बाद तुम हो सके तो कम आना और जब भी आओ तो अपनी बीवी को लेकर।
मैं ये सब बातें पर्दे के पीछे से सुन रही थी। मुझे इतना शॉक बैठा था उस वक़्त कि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मेरी जो मानसिकता थी, मेरा जो चेहरा था, मेरी जो आँखें थी, मेरी जो गज़लें थी, मेरी जो शायरी थी, वो इस माँ ने कब पढ़ी? इसको कब समझा कि मैं इस तरह दीवानी हुई जा रही हूँ? और मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि अगर मेरी अपनी माँ ज़िंदा होती, तो वो ये सब चीज़ें पकड़ पाती, वो ऑब्ज़र्व कर पाती। मुझे एक तरह से गिरते-गिरते, क्योंकि रंजीत भी काफ़ी उम्र में बड़े थे, गिरते-गिरते मेरी माँ ने अपने आप को मेरे को बाहों में समेट लिया था। उस दिन तो मुझे ख़ैर बुरा लगा, लेकिन बहुत दिनों बाद जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती गई, मैंने सोचा कि सचमुच उस वक़्त अगर माँ ने मुझे सँभाला नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। ये उम्र ही दीवानी होती है, उस पर से मैं तो बहुत ही दीवानी थी, शायरी के पीछे पता नहीं मैं क्या कर बैठती, और सेंसिटिव भी थी, बहुत भावुक थी। तो मैंने अपने आप को सँभाला, धीरे-धीरे दिन बीतते गए। फिर दीदी की शादी जो थी वो उनसे उम्र में बड़े काफ़ी सीनियर थे उनसे, जो डॉक्टर, उनसे शादी तय हुई थी और ये लव मैरिज थी। उनकी ससुराल से फ़ोन आया, उन्होंने कहा मिलने बुलाया। मिलने की जाने की बात हुई तो माँ ने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगी, आप भानु को लेकर जाइए। और माँ ने मुझे अंदर ले जाके समझाया कि ठीक से सुनना वो लोग क्या कहते हैं। जब हम लोग दीदी के होने वाले ससुराल पहुँचे तो उसके ससुर जी की भाषा बदली हुई थी। बोले देखिए डॉक्टर साहब, आपने तो शादी कर ली, अब हमारे तो सारे मेहमान लोग हमारे को बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस उम्र में आपने शादी कर ली, वो भी अपने से छोटी उम्र की लड़की, अब हम क्या जवाब दें? हम तो शादी तोड़ना नहीं चाहते हैं, पर हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो आप ऐसे कीजिए कि जो दहेज की रकम तय हुई है उससे उसे बढ़ा दीजिए, ताकि हम हमारे रिश्तेदारों को ये कह सकेंगे कि लड़के को क्लिनिक डालने के लिए उन्होंने जगह दी, हम इनकार नहीं कर सके। तो ये सारी बातें सुनते ही मैं हैरान सी मेरे होने वाले जीजाजी की तरफ देख रही थी कि जिस आदमी को जीजू जीजू कह के मैं दिन रात उनसे बातें करती थी, वो आदमी इस तरह की बातें कर सकता है। और वो चुपचाप से बुत बने कोने में बैठे हुए थे, अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं बोले। पापा ने खामोशी से कहा कि ठीक है दयाल साहब, मैं घर जाता हूँ, घर जाके मशवरा करता हूँ, शकुन से पूछता हूँ और आपको जवाब देता हूँ। वहां से हम लोग निकले तो गाड़ी से हम घर आने की बजाय सीधे दीदी के हॉस्टल पहुंचे। दीदी हॉस्टल पहुँचने के बाद पापा ने दीदी को सब वाक़या बताया। तो पाप दीदी बहुत भड़क गई। उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत कैसी हुई आपको बुलाने की? मैं कोई बिकाऊ चीज़ हूँ? आपने पहले भी दहेज कबूल किया था, वो मुझे मंज़ूर नहीं था। मैं ये शादी तोड़ चुकी हूँ, उन्होंने आपको बताया नहीं पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। मेरे को डिग्री मिलते ही मैं लंदन जा रही हूँ और मैं वहीं पढ़ूँगी और वहीं बसूँगी, मैं नहीं आऊँगी। पापा चुपचाप बैठे हुए थे। पापा बोले शकुन, ज़िंदगी में सेटल होना होता है। तुमने कुछ तय किया था बेटा, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं। आपको मुश्किल नहीं है, आपको किसी चीज़ की मुश्किल ही नहीं रहती, मुझे रहती है। मुझे ये पसंद है। और दीदी ने वो विषय ही खत्म कर दिया। हम लोग घर लौटे, माँ ने पूछा क्या हुआ? पापा ने सब बताया। माँ बोली एक बार फिर मिलके कुछ होता है क्या एडजस्ट देखिए, पूछ लीजिए। पापा ने कहा सवाल ही नहीं उठता। शकुन कितनी ज़िद्दी है मुझे मालूम है, उसने शादी तोड़ दी और अब ये शादी नहीं होगी। ये बहस यहीं खत्म कर। उसके बाद दीदी लंदन चली गई। थोड़े दिन हुए, एक बार भैया आए थे। माँ को वो तो बहुत कम आते थे, आते भी थे तो माँ को कोई माँ तो कहता ही नहीं था मेरे सिवा। एक दिन भैया आए और उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाया और मेरे से बोला ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो तुम पापा के कान पर ये बात डाल। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने माँ से मशवरा किया। माँ बोली ठीक है, रात को मैं बात करती हूँ। उन्होंने पापा से बात की, थोड़ी-सी इधर-उधर की बात होने के बाद वो शादी तय हो गई। तय होने के बाद घर में शादी का माहौल था। जैसा कि मेरी बुआ की आदत थी, आने के बाद पूरे घर का कब्ज़ा लेने की, बुआ जी भी आ गई। शादी का घर था। दिन-रात माँ को उठाती बैठती, जैसे उठाती बैठती वैसे माँ काम करती थी। कभी माँ ने उनको इनकार नहीं किया, उनका मान रखा। फिर आया हल्दी का दिन, जब उसको हल्दी लगानी थी, तो उससे पहले उसकी आरती करनी थी, तो माँ ने जो आरती का थाल लिया, आरती उतारने के लिए उठी, तो मेरी बुआ ने कहा कि तुम नहीं उतार सकती आरती, तुम्हें कहाँ बाल-बच्चा है? इस बात को सुनकर माँ सकते में आ गई और उस वक़्त भैया गरज पड़े थे। कौन कहता है इन्हें बच्चा नहीं? हम 4 बच्चे हैं इनके। और उस बार पहली बार भैया ने उसे माँ करके बुलाया और कहा कि माँ तुम आरती उतारो। बुआ जी कुछ नहीं कर पाईं।
माँ में और बड़े भाई में मेरे ख्याल से 5-6 साल का अंतर रहा होगा, लेकिन उस दिन से बड़े भैया ने जो उसको माँ माना, वो आज तक उनके देखा देखी छोटे भैया भी उनकी तरह माँ मानने लगे। घर का माहौल सुधर गया। हम सब भाई बहन ने माँ को अपना लिया था। ये सारी बातें आज मुझे याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कि आज इस घर में कितना बड़ा योगदान था पापा की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, किस काबिलियत से माँ ने इस घर को संवारा था। तभी दरवाजे पे टक टक हुई, नौकर बाहर खड़ा था, उसने कहा दीदी आपको नीचे माँ जी बुला रही है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, तुम चलो। हम लोग नीचे गए तो देखा भाभियां भी बैठी हुई थी, दोनों भाई बैठे हुए थे। फिर मेरी माँ ने कहा कि आज मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया कि कल तुम्हारी बुआ चली गई तो आज मैं खुलकर तुमसे बात कर सकती हूँ। आप लोग तो जानते हैं तुम्हारे पिताजी ने वसीयत करके रखी थी। तो मेरे दोनों भाई बोले हाँ हमें हमारे पापा की बिल मालूम है और हमें वो मंजूर भी है, वो जाते जाते आपके नाम सब कर गए हैं और इसमें कोई गलत काम नहीं है। इस पर माँ ने कहा कि नहीं उन्होंने किया सो किया, लेकिन आज मैं मेरा बिल पढ़ना चाहती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तभी मैं बंटवारा कर देना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद वगैरह ये बंटवारा नहीं होगा, वो आज ही होगा और तुम लोग बिल सुनो। इस पर मेरे भाई चिढ़ गए, बोले इस तरह की बातें क्यों करती हैं माँ, हमने कुछ पूछा है आपसे? तो माँ बोली मुझे मालूम है तुम नहीं पूछोगे, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम लोगों को बता दूं मैंने क्या तुम्हारे लिए किया है। लखीमपुर में हमारी बहुत बड़ी जायदाद थी, बहुत जमीनें थी, 2 हवेलियां थी। माँ ने वो पूरी जमीन दोनों भाइयों के नाम कर दी, 2 हवेलियां दोनों भाइयों को दे दी। घर में 2 गाड़ियां थी, दोनों भाइयों को दे दी। पापा के नाम पे जितने शेयर्स थे, पापा की जितनी इन्वेस्टमेंट थे, पापा के जितने प्लॉट्स थे, वो सब समान हिस्सों में दोनों भाइयों को बांट दिया। फिर उसके बाद वो अंदर गई और उन्होंने गहने लेकर आई और लाने के बाद उन्होंने मेरी भाभीियों से कहा कि ये तुम्हारी सास के गहने हैं, मतलब उनकी पहली पत्नी के, जिन्हें मैंने कभी छुआ नहीं, मुझे वैसे भी गहनों का शौक नहीं था। तो ये दोनों गहने मैंने तुम दोनों में आपस में बांट दिए, तुम ये गहने रख लो। भाभियां तो बहुत खुश हुई, लेकिन भाभियों के चेहरे पर बार बार एक सवाल आ रहा था कि सब तो बातें कर रही है लेकिन इस बंगले के बारे में कुछ नहीं कह रही। फिर माँ मेरी तरफ मुड़ी और मेरे से बोली कि मैं बहुत छोटेपन से नौकरी करती रही और मैंने अपने लिए कुछ गहने बनवाए थे, मेरी शादी के वक्त मैंने बनवाए थे, तो भानु मैं वो गहने तुम्हें देना चाहती हूँ। इसलिए उन्होंने अपने खुद के गहने मुझे दिए। मैंने लेने से इनकार किया। मैंने कहा माँ आपने कन्यादान में सब कुछ तो दिया था पापा ने, ये क्यों आप दे रही हैं? नहीं बेटा ये मेरी निशानी है, ये मेरी अपनी कमाई का है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे भाई से कहा कि तुम लोग जाने के बाद अब फिर मेरी भाभियों की तरफ मुड़ के बोली कि इस घर में जितना भी कीमती फर्नीचर है, जो स्टेचूज हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो तुम दोनों आपस में बांट लो और ये घर खाली कर दो, क्योंकि ये घर छोड़कर मेरा जो शादी से पहले फ्लैट था मैं वहां रहने जा रही हूँ। इस पर मेरे भाइयों ने फिर आक्षेप उठाया, बोले ये क्या बात है, इतना बड़ा घर है, इतना है, पापा ने आपके नाम किया, आप क्यों जिद पे तुली हुई है? तो बोली देखो बेटा जब वो थे तब उनके साथ रही, अब इतने बड़े घर में अकेली उकता जाऊंगी और ये घर तो मैं खाली करवा रही हूँ, इसमें की चीजें दे रही हूँ, उसके पीछे भी सबब है मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जिस फ्लैट में जाने वाली हूँ और मेरी जो सेविंग्स है, मेरी जो कुछ भी कमाई है, वो सब मैं भानु के नाम करती हूँ। मेरे जाने के बाद वो सब भानु को मिलेगा। मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप थी, मुझे समझ ही नहीं रहा था हम भाइयों को कि भाई बहनों को कि ये क्यों इस तरह का कर रही है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी भाभियों की तरफ देखा और बोला क्यों बच्चियों चेहरे पर एक सवाल है ना, इस घर का क्या? तो मेरे भाइयों की तरफ मुड़कर बोली कि तुम मुझे इजाजत दो, मेरी इच्छा तुम पूरी करो, तुम बुरा मत मानना, पर मैंने ये घर शकुन के नाम किया है। इस बात पर बड़े भैया बहुत जोर से टनक गए, बोली क्यों दीदी के नाम किया आपने? जिस औरत ने कभी आपको मुड़कर पूछा नहीं, जिसने कभी आपको मुड़कर देखा नहीं, जिसने कभी आपसे फोन पर बात नहीं की, पापा के मरने के बाद भी जिसने आपसे बात नहीं की, उस लड़की के नाम आपने इतना बड़ा कर दिया घर, क्या लॉजिक है इसके पीछे? उस पर मेरी माँ हंसकर बोली कि बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, कभी कभी जिंदगी में हम गलत निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय को लेने के बाद जब हमें महसूस होता है कि हमने जो निर्णय लिए थे वो बहुत गलत थे और हम हमारी पिछली जिंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं, तो उस जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हम लौट नहीं पाते। कभी जब शकुन को ऐसा महसूस हो
कि उसका कोई निर्णय गलत था और वो लौटना चाहे, तो उसे एक हक की छत मैं देके जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ और जानती भी हूँ कि तुम लोग इसके ऊपर आक्षेप नहीं लोगे। हम तीनों भाई बहनों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये किस तरह की औरत है, कैसा विचार करती है। कितना बड़ा लॉजिक हम जानते थे कि माँ ने जब पापा से शादी की तो उनको मायके के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो जा नहीं पाई, वो पापा को छोड़कर कहीं नहीं गई, इसीलिए शायद वो हम सफर था। मगर उससे हम नवाई न थी, ये गजल रंजीत वर्मा ने माँ को सुनाई थी। उस गजल का अर्थ मुझे अब समझ रहा था माँ के हिस्से में। मेरे भाई ने कहा, आपने इतनी बातें खुल के की है माँ, एक बात पूछूं? तो माँ ने कहा, पूछो। मेरे भाई ने कहा कि पापा आपसे उम्र में बड़े थे, आपने शादी का फैसला कर लिया, शायद उनके साथ काम करते करते आप उनकी तरफ उनका रुझान हुआ, आदर हुआ आपको और इसलिए आपने शादी करी। आपको क्या मिला, पापा ने क्या दिया? जायदाद थी, नो डाउट, लेकिन आपको वैसे क्या मिला? उस पर मेरी माँ ने हंसकर एक ही बात की, बेटा तुम्हारे पापा एक ऐसे जादूगर थे जिन्होंने खूबसूरत परी को कांच की पेटी में बंद कर रखा और सिर्फ रात को वो पेटी खोलकर उस परी को बाहर निकाल। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। It was really nice. शलाका स्पीचलेस। Absolutely speechless. और ऐसे लग रहा था आप अपनी कहानी सुना रहे हो, किसी की है, ऐसे लग ही नहीं रहा था। जी, think मालती जोशी बहुत खूबसूरत लिखती हैं और खास करके औरतों के जज्बातों के बारे में बहुत अच्छा लिखती हैं। सादी सादी घटनाओं पे मनोविश्लेषणात्मक लिखती हैं वो, इसलिए वो सिर्फ मुझे पढ़ाया था उन्होंने इसलिए नहीं, पर मैं उनकी बहुत ये हूँ, फैन हूँ बड़ी। गुलजार साहब की दोस्त हैं, जया बच्चन की दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। उनकी कहानियां सच में बहुत अच्छी रहती हैं और मुझे लगता है कि मैं आपकी उम्मीद पे खरी उतरी होंगी आज। Absolutely, absolutely. सुचित्रा जी, एक बात आपसे पूछने की थी। आपने 45 मिनट्स बिना कुछ पढ़े जिस तरीके से, जिस धारा प्रवाह से आपने ये कहानी सुनाई, ये इतने कैसे आप कर सकते हैं? इतना 45 मिनट्स तक एक साथ बिना इंटरप्शन के बोलते बोलते चले गए। पहली बात तो ये फोन मेरी समधन का है, सुचित्रा उसका नाम है, मेरा नाम शलाका है। अच्छा, सॉरी सॉरी। वो भी मेरी समधन भी रोटेरियन है। अच्छा, तो आज मैं उनके घर आई हुई हूँ, मेरी समधन के यहाँ, और वो खुद रोटेरियन है। सुचित्रा कुलकर्णी, डॉक्टर सुचित्रा कुलकर्णी उनका नाम है। ओके ओके। और मुझे इसीलिए जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि घटनाएं उनकी हैं, कहानी उनकी है, लेकिन शब्दांकन मेरे हैं, वो कहने का कारण ही ये था कि मुझे पढ़कर सुनाना अच्छा नहीं लगता है। वो बात दिल से निकलती नहीं है और दूसरे दिल तक पहुंचती नहीं है। आपके दिल तक पहुंचने के लिए मैंने मेरे शब्दांकन का उपयोग किया और कुछ भी नहीं। और जिस धारा प्रवाह से आपने बात करी बिना एक मिनट रुके, ये कैसे होता है? हो जाता है। आप लोगों जैसे चाहने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग दाद देते हैं तो हो जाता है। वही मुझे वही पढ़कर बोलना अच्छा तो आर्टिस्ट का जज्बा है सुरेंद्र जी। हाँ, ये बात तो है। नहीं, और इनका भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। हाँ, ये वो बात जो प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने सुना है इनको, है। तो वहाँ पे भी बिना पढ़े वो बोलती रहती है और वो जो एक प्रवाह है वो कभी खंडित नहीं होने देती। हाँ हाँ, खंडित नहीं हुआ है। भाषा पे पकड़ है बहुत अच्छी। एक दो अच्छी शेरो शायरी सुना दो ना, हमारे कुलबीर जी को बहुत पसंद है। हाँ, एक शायरी मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी कि आइए इन नूर की बिजलियों को हम आपस में तकसीम कर लें। नूर की बिजलियां यानी आप सारे श्रोतागण जो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये आप सब नूर की बिजलियां तो है मेरे लिए। तो आइए इन नूर की बिजलियों को हम आपस में तकसीम कर लें। रोशनी आप रख लीजिए, तड़प मैं साथ ले जाऊंगी। क्या बात है। किनका शेर है शलाका जी? जी बोलिए। ये शेर किनका? शेर किसका शेर है? मुझे अभी शायर का नाम याद नहीं आ रहा, पर ये बहुत मशहूर शायर का शेर है।
ये साहिर लुधियानवी अवार्ड क्या है? हाँ, पुणे में साहिर लुधियानवी और बलराज साहनी नाम का फाउंडेशन है। साहिर अच्छा। लुधियानवी ये कम्युनिस्ट पंथ को मानने वाले थे, बलराज साहनी भी थे और मजरू साहब भी थे। ये लोग सब कम्युनिज्म में विश्वास रखने वाले थे। तो उनके नाम पर एक फाउंडेशन है, साहिर लुधियानवी बलराज साहनी। तो उस फाउंडेशन के लोगों ने किसी ने उनको बताया था कि ये साहिर पे प्रोग्राम करती है, तो वो मेरा प्रोग्राम देखने आए थे और प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने वहीं पर जाहिर किया कि हम इनको साहिर लुधियानवी अवार्ड दे रहे हैं। तो वो अवार्ड मुझे 2018 में 23 फरवरी को मिला और वो अवार्ड मुझे मानसी मागीकर जो फिल्म स्टार है, मराठी फिल्म स्टार है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, उनके हाथों से मुझे दिया गया। YouTube पर उसके सारे फंक्शंस के फोटो हैं, वीडियो हैं। नंबर नोट करना जरा। आपको छोटा सा ट्रिविया बता दूं मैं? जी। मैं साहिर लुधियानवी का बड़ा पक्का दोस्त था। अरे 2 वाह, साल। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। 1947 से 49 पार्टीशन के बाद जी। मैं भी लुधियाना इमिग्रेट किया था, उन्होंने भी। जी। उस वक्त बड़े गरीब थे वो। जी, जानती हूँ। उनका घर जो था, मैं उनको बड़ी, मैं उनके साथ गजल नवाई करता था। अच्छी बात। मेरी 93। जी। और आपको एक चीज बताऊं, आज साहिर की 100th एनिवर्सरी है मार्च में बर्थ। हाँ जी, 8 मार्च को रहती है, उनकी हो गई, 100 साल के हो गए वो। जी। अच्छा, तो मेरे को ये नहीं पता था कि ये फाउंडेशन है यहाँ पर। जी, तो यहाँ उसका पर जरा एड्रेस मेरे को भेज देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वापस घर जाऊंगी तो मैं आपको दीप्ति जी को भेजती हूँ, मैं उनका फोन नंबर। उनके बाकी कुछ नहीं है, उनका सिर्फ एक फोन नंबर है, जिस फोन पर आप फोन करके मिस्टर टिड़ेकर नाम लिख लीजिए आप, टिड़ेकर। मैं जानना चाहूंगा, मैंने पिछले 10 साल में पोएट्री लिखी है साहिर के साथ जी, और वो अब किताब भी छापी है मैंने, जी। और उससे पहले और बाद में बिल्कुल शायरी नहीं की। अरे आपका शुभ नाम जान सकती हूँ सर मैं? मेरा नाम ये कुलबीर डॉट। तो 40 मेरी कॉपी, मेरी एक आदमी पढ़ रहा था 1940 की पोएट्री का, उर्दू की। आपका फोन नंबर बता सकते हैं आप? शलाका जी मैं आपको भेजूंगी। जी। एक बात आपसे मैं साझा करना चाहूंगी कि शायद 3-4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, नहीं 1915-16 साल की बात है शायद ये, कि यहाँ पर पंजाबी विश्व सम्मेलन हुआ था, पंजाबी भाषा का, पंजाबी साहित्य का विश्व सम्मेलन हुआ था पुणे में। तो पुणे में ये सम्मेलन हुआ था, स्वारगेट के पास जो हॉल है वहां पर ये हुआ था, गणेश क्रीड़ा में। तो वहां पर एक धवन करके आए हुए थे, तो मेरे एक दोस्त हैं मलिक साहब, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि तुम धवन जी को मिलो, वो किताब लिखते हैं साहिर पर। तो उन्होंने वो किताब उर्दू में लिखी और वो पब्लिश पाकिस्तान से हुई है। तो वो उनसे जब मैं मिलने गई तो उन्होंने साहिर के बारे में मुझसे बहुत सारी जानकारी पूछी मुझे। तो मुझे जो मालूमात मैंने हासिल की थी, क्योंकि मैं 8-10 साल साहिर साहब को पढ़ रही थी लाइब्रेरी में जाकर, फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर, तो मुझे जो जो पता लगा, जो जो मालूम था, मैंने उनके साथ साझा किया। तो वो मेरे से पहली बार बोले कि आप बहुत सही दिशा में जा रही हैं। और उन्होंने उस वक्त की जो कुछ वाकये थे कि पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान कब आए, 2 बार आए थे, एक बार आए फिर माँ लापता हो गई तो ढूंढने चले गए, फिर दूसरी बार आए। तो ऐसी कुछ कुछ बातें मुझे मिलती गई ऐसे ही लोगों से। अब आपसे परिचय हुआ है तो मैं आपको फोन करूंगी और आपसे बात करूंगी। the only surviving member on this planet who knew Sahir well. जरूर मुझे आपसे it has been an amazing evening for all of us, और काफी सारे लोग हैं who are really into all Kathakathan and all these things. So Dipti, for vote of thanks, Krishna Kurdukar. Krishna Kurdukar. Yes, Krishna yes. Kurdukar, you can. Hello. Yes, we can hear you, Krishna. Yeah, okay. Shalaka ji, it was a beautiful program, and Thank your you. passion is coming up very strongly. And the flow what you have maintained, आपने जो फ्लो मेंटेन किया है, बहुत सुंदर फ्लो मेंटेन किया हुआ है।
आपसे हमको कुछ सीखने को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, इतनी आज बड़ी कोई भी sort of novel narrate करना in one stroke, that shows that your involvement into everything, you know. I would like to say thanks to you by saying that we would like to call you for the Shero Shairi program to our club again. And we are really thankful to you. And we would like to invite you to our Rotary Club also. If it is possible, please come here. We can make a fun, very good fun here. We can really enjoy it. So we are thankful to you. आपके लिए साहिर का प्रोग्राम करूं आपके क्लब के लिए। मैंने बहुत सारे रोटरीज के लिए किया है साहिर का प्रोग्राम। Sure. जी जरूर। हाँ, वो करेंगे, हम लोग जरूर करेंगे। और अपने चीफ गेस्ट तो हमारे कुलबीर जी तो है ही, उसके साथ में उनके बारे में कुछ बताने के लिए। तो हम आपसे बहुत खुश है ये मैटर के ऊपर में। तो हम आपके आभारी है, आप आके हमको ये जो कहानी बताई है, जिस लहजा में आपने बताई है, जिस लैंग्वेज में बताई है, इट वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। Thank you. Thank you everyone. Thank you Shalaka ji, and thank you everyone for attending the program and being real good listeners. Very good. शलाका जी, आपने सबको मंत्र मुग्ध रखा, सारे ऑडियंस को। Absolutely. बहुत अच्छा रहा। ये आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल हूँ। कहानी शुरू हुई थी, लग नहीं रहा था कि इतना इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती गई लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया। बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। The meeting is adjourned. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मला वाटलं तुझी एखादी कविता ऐकायला मिळेल। नाही म्हणजे आता अनऑफिशियली कविता ऐकवायला काय हरकत? Meeting is adjourned and recording is stopped. So